बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। मलिक अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पाकपतन के इलाके में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। एसएचओ सदर पाकपतन आशिक आबिद महात ने अपनी टीम वकास अहमद ड्राइवर कांस्टेबल अहमद खान कांस्टेबल के साथ गश्त पड़ताल जराइम पर मौजूद थे कि 15 पर एक कॉल मसूल हुई कि 4 डाकू वारदात करने के बाद चंद पीर रोड की तरफ फरार हो रहे हैं, जिस पर एसएचओ थाना सदर ने फौरी एक्शन लेते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया और ताक़ुब करने लगे। दरबार से थोड़ा आगे जाकर डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया और 2 डाकू जो मौका पर ही अपनी 2 साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि 2 डाकू भागने में कामयाब रहे। हलाक होने वाले डाकुओं की ताहाल शनाख्त न हो सकी। डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अहले इलाका और पाकपतन की आवाम की तरफ से एसएचओ थाना सदर की पूरी टीम को ढेरों दुआएं और खराजे तहसीन पेश किया। अहले इलाका ने पूरी टीम के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की और पाकपतन पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे जहानिया से। सकलैन की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर बासर जमींदार ने सड़क मसमार करके गंदम की फसल काश्त कर ली है। शकील नामी शख्स ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। 139-10 आर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। सियासी असर और रसूख रखने और वोट न देने की रंजिश पर इलाका मकीनों का रास्ते के साथ पानी भी बंद कर दिया। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं एमबी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर सकलैन। जी आगाह कीजिएगा। कहना है कि यहाँ के कदीमी जो रोड है 30 साल पुराना, उसी का जो सरकारी खाला था उसमें पानी जा रहा था, लेकिन वो भी पानी बंद कर दिया गया। मजीद उनसे बात करते हैं, वो एहतजाज भी कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाजी अफजल बोल रहा ਚੱਕ ਨੰਬਰ 139 ਟੈਨਾਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਣਾ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੱਕ 'ਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਾਣਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਇਫਤਖਾਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸਤਕਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਜਵੇਦ ਤੇ ਨਵੀਦ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਆਬਾਦ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਣੇ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਰਸਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਦਫਾ ਲਿਆ, 3 ਦਫਾ ਸਟੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਕ ਟੱਕ ਛੱਡੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ शफकत की जाए, पानी साडा खोलिया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इलाका मकीन यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि 30 साल पुराना जो पहले रोड था, सड़क थी, उसे भी मसमार कर दिया गया। स्टे लिया, स्टे के बाद हमारे हक में फ़ैसला हुआ, उसके बावजूद उसकी 2 मामला चल रहे थे। अभी तक कब्ज़ा भी उन्हीं का है, उन्होंने गंदम काश्त कर रखी है। बाद में इलेक्शन के बाद रंजिश की बिना पर उन्होंने जो है सड़क, जो कदीमी सड़क 30 साल पुरानी जा रही थी, जो चौक चौराहे पर मेन सड़क जाती है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं है, यहाँ कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए, सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो सड़क पे गुजरने वाले बच्चों का भी होता है। और इन्होंने मुतालबा किया है आईजी पंजाब से और गवर्नमेंट तमाम इदारों से कि हमारे मुतालबे को फिलफौर हल किया जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मुल्तान से। ख्वाजा सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ मुल्तान सादिक अली के मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले मैच के दौरान स्टेडियम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हुए शायकीन ने समा बांध दिया। सीपीओ मुल्तान को अपने दरमियान देखकर पुरजोश हो गए। सीपीओ मुल्तान जिंदाबाद और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। शायकीन ने सीपीओ मुल्तान के साथ सेल्फियां बनवाई और पीएसएल के पुरअमन इनेकाद के लिए मुल्तान पुलिस की तरफ से किए जाने वाले इकदाम की तारीफ की।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे चनियोर से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक झंग रोड अड्डा पठानकोट के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। एक्सीडेंट में यासीन वालिद सूबा खान 25 साल, 144 चक नंबर मोहम्मद खान वल मोहम्मद असलम 28 साल, चक नंबर 144 मौका पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाँ बहक होने वालों की डेड बॉडीज वर्षा के हवाले कर दी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे चनियोर से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक खान का सैयद नफीसुल हुसैनिया अल मक्का नुसरताबाद चनाब नगर में मिराज सेमिनार का इनेकाद 9 मुस्लिमीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए चेयरमैन अनवार खत्म नबुव्वत ट्रस्ट पाकिस्तान मौलाना कारी मोहम्मद रफीक नफीसी, मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान नवीसी, मौलाना उमर हयात सदीकी ने कहा है कि मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर वक्त का तवील तरीन सफर है। वाक़या मिराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिदरतुल मुंतहा तक रसाई अजीम मौजज़ा है। आपकी सीरत तैयबा अमली नमूना और उसवा हसना आलमी इंसानियत के लिए मशलेरा है। आपकी हयात तैयबा उम्मत के लिए मशलेरा है। मोहब्बत रसूल का तकाजा है। तलीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात सीरत नबी जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई और हिदायत और निजात है। इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा, हमारी मसाइल की सबसे बड़ी वजह दीन और तालीमात नबी से दूरी का नतीजा है। मसाइल का हल सीरत नबी की पैरवी में है। इहकाम खुदाबंदी की हमें शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा होने का हुक्म देती है। नबी करीम की सीरत मुबारका को आइडियल बनाएं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल जाएगी। आखिर में मुल्क की सालमियत और तरक्की इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे मरी से। राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 9 मुंतखब एमएनए राजा उसामा इशफाक सरवर को दस्ते शफकत रख दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कश्मीर पॉइंट में उनकी रिहाइशगाह में राजा उसामा इशफाक सरवर की तवील मुलाकात। उसामा इशफाक सरवर को NA-51 में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी और जीत पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इन्हें मुबारकबाद दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नौजवान एमएनए मुस्लिम लीग नून हल्का NA-51 से मुतल्लिका मसाइल पर तवील मुशावरत की और इन्हें हल्के के मसाइल के हल के लिए बढ़ चढ़कर उनका साथ देने की यकीन दहानी करवाई। 9 मुंतखब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हल्का NA-51 राजा उसामा इशफाक सरवर के साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कश्मीर पॉइंट में अपने आबाई घर में उनसे मुलाकात की। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे वजीराबाद से। रजा अली की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर चट्ठा में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। थाना अलीपुर चट्ठा के इलाके फाजल टाउन में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात पेश हुई। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर मां बेटे को फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस जराये से मालूम हुआ है कि दोनों मां बेटा घर में अकेले मौजूद थे। अहले इलाका की जानिब से पुलिस को मतला किया गया। मकतूलीन को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। कत्ल की वजह सामने न आ सकी। पुलिस का कहना है मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल किया गया है, जबकि बेटे की उम्र 24 साल है, जबकि मां की उम्र 55 साल के करीब बताई गई है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे इमरान जाहिद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक ईवान इकबाल लाहौर में रोजनामा तालिबे नजर की जानिब से अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। ईवान इकबाल लाहौर में होने वाली इस तकरीब में कॉलम निगार, कहानी नवीस मोहतरमा कुरतुल्लैन बशीर साहिबा को तालिबे नजर अदीब असासा अवार्ड 2024 से नवाजा गया। मोहतरमा कुरतुल्लैन बशीर जिला रावलपिंडी से बाकायदा लिखने का आगाज किया। वो गुज़श्ता 3 सालों से अदब से वाबस्ता है। मोहतरमा 3 कुतुब की मुसन्निफा हैं, जबकि 8 से ज़ायद कुतुब में बतौर शरीकी मुसन्निफा शामिल हो चुकी हैं। मोहतरमा कुरतुल्लैन बशीर इन दिनों रोजनामा राहनुमा में बतौर इंचार्ज एडिटोरियल अपनी तमाम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा वो राहनुमा राइटर्स यूनियन के सदर भी हैं। वो तरीके दिफा, कौमी जुबान, लिबास में बतौर प्रूफ रीडर, सोन वैली सोसाइटी में बतौर इंचार्ज मुकाबले जात, नायब मुदीरा में बतौर लीडर ऑफ चकवार चीटर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। मोहतरमा कुरतुल्लैन बशीर इदारा एन उर्दू अदब फोरम की भी बानी है। इन्हें साल 2022 में दारेन अल हुदी शील्ड, साल 2023 में अदबे समाज इंसानियत शील्ड और साल 2024 में तालिबे नजर अदीब इसासा अवार्ड से नवाजा गया। उनका शुमार कम उम्र लिखारियों में होता है। इस मौका पर मुमताज सहाफी, रोजनामा राहनुमा के चीफ एडिटर और अदबी हलकों की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे भक्र से। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक
डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की जेर सदारत ज़िला इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौका पर महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से दी गई ब्रीफिंग में बताया गया है कि जिला में 26 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहने वाली 5 रोजा पोलियो राउंड के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। पोलियो राउंड के दौरान 5 साल तक के कम उम्र के 3,65,500 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलवाए जाएंगे, जिसके लिए 1500 टीम्स तश्कील दे दी गई है। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा है, पोलियो राउंड के दौरान महकमा सेहत की टीम्स की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मलिक अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पंजाब में मशहूर और मारूफ मेला मार मवेशियों और लकी रानी सर्कस डेरा गाजी खान कोयटा रोड पे मुनाकिद हुआ है। हर साल खलील खान लगारी जो इलाके के सरदार हैं लगवाते हैं। यूनुस खान कहतरान तमाम तर हालात कंट्रोल करते हैं। पानी, जानवरों के लिए चारा, मोटरसाइकिल, कार स्टैंड और तमाम तर हालात का बाखूबी जायजा लेते हैं। डीसी माहिर शाहिद जमान लीग ने मेले का इफ्तिताह कर दिया है। डीसी मेहर शाहिद जमान लीग का कहना है कि तमाम तर मुसाफिरों का खास ख्याल रखा जाए। बेजुबान जानवर, इसी तरह डीपीओ मुहियुद्दीन खान ने हालात का जायजा लेकर भारी नफरी तैनात कर दी है। डीएसपी सदर, एसएचओ सखी सरवर, आफ्ताब शबीर खुद निगरानी कर रहे हैं। एलिट फोर्स भी अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल। यूनुस कहतरान ने कहा है, शेड्यूल के मुताबिक ये मेला चलेगा। किसी ठेकेदार और साइट वाले से ज्यादा चार्ज नहीं लेना। मुसाफिरों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। यूनुस खान कहतरान एसी सदर के साथ विजिट किया, तमाम तर हालात का जायजा लिया। एसी सदर ने लकी रानी के सामान को इनफिट करार दे दिया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से। उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में गवाल मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। एसपी सिटी की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर एसएचओ गवाल मंडी गुलाम बारी और टीम को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन के अहकामात की रोशनी में थाना ग्वाल मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। थाना ग्वाल मंडी पुलिस के एसएचओ गुलाम बारी की सरबराही में इलाका गैर से मंशियात की सप्लाई लेकर आने वाले 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। जीशान नामी मुलजम से 19 किलो से जायद चर्स और 11 किलो फीम, जबकि मुलजिम इमदाद के कब्जे से 30 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुलजमान इलाका गैर से मंशियात लाकर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त करते थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश का अमल जारी है। एसपी सिटी रिटायर्ड कैप्टन काजी अहमद की जानिब से मंशियात की बड़ी खेप पकड़ने पर एसएचओ ग्वाल मंडी गुलाम बारी और टीम को शाबाश व तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया गया। जी एमबी न्यूज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।